नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए AUDA, AMC और SRDCL परियोजनाओं का उद्घाटन किया। लोगों को बीजेपी की लाभकारी योजनाओं से अवगत कराने के साथ साथ लोगों को संबोधित भी इन्होंने इस दौरान किया। अमदावाद पूर्व लोकसभा संसद सभ्य बहन प्रतिभाबेन जैन, मेयर अमदावाद श्री अमित भाई शाह, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष, उपस्थित सौ धारासभ्यश्रीओ, श्री सुरेन्द्र काका, श्री धर्मेन्द्र भाई, म्युनिसिपल कमिश्नर અને ઉપસ્થિત સૌ અધિકારીઓને મારા નમસ્કાર। સૌથી પહેલા તો હું આજ ગુજરાત સરકારના મુખ્યમંત્રી, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને ઔડાના સૌ અધિકારીઓનો મારા મત વિસ્તાર વતીથી હૃદયથી ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપવા માંગુ છું। અમદાવાદ શહેરની ત્રણેય લોકસભામાં આજે લગભગ 3000 કરોડથી વધુના 63 કામોના લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત થયા છે। ગાંધીનગર લોકસભામાં 27 કામો 1800 કરોડના ખર્ચે, અમદાવાદ પૂર્વ લોકસભામાં 25 કામો 1040 કરોડના ખર્ચે અને અમદાવાદ પશ્ચિમમાં 168 કરોડના ખર્ચે 11 કામોનું આજે લોકાર્પણ અને ભૂમિપૂજન થયું છે। સમગ્ર દેશમાં નરેન્દ્રભાઈએ ગુજરાતમાંથી ચાલુ કરેલી વિકાસની વણથંભી વરજાળની એક સંસ્કાર આ સમગ્ર દેશમાં પ્રસરવાની શરૂઆત થઈ છે। છેલ્લા કેટલાય વર્ષથી દરેક જગ્યાએ અને દરેક ક્ષેત્રમાં અને દરેક વ્યક્તિને સ્પર્શે એવો વિકાસ ગુજરાતમાં આપણે સૌએ અનુભવ્યો છે। આજ લગભગ હેબતપુર, ઘોતા અને થલતેજ થઈ 2000 લોકોને પોતાના ફ્લેટ ઘરનું ઘર મળવાનું છે। એની સાથે અંડરપાસ, નહેર પર પુલ, ATM, આંગણવાડી ભવન, પાણીના શુદ્ધિકરણના પ્લાન્ટ્સ, રિંગ રોડ પર મોટા ઓવરબ્રિજો અને ટ્રંક મેન લાઇનના કામો અને સૌથી અગત્યની વાત જ્યાં ગરીબ બાળકો ભણે છે એવી ગાંધીનગર મત વિસ્તારની 40 મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની સ્કૂલોને સ્માર્ટ સ્કૂલમાં બદલવાનું કામ આજે થવા જઈ રહ્યું છે। આ 40 સ્કૂલોના સ્માર્ટ સ્કૂલમાં પરિવર્તન થવાની સાથે જ ગાંધીનગર લોકસભામાં દરેકે દરેક સ્કૂલ પ્રાથમિક શાળા હવે સ્માર્ટ શાળામાં બની ગઈ છે। એના માટે હું અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનનો હૃદયથી ધન્યવાદ માનવા માંગુ છું। હું ધર્મેન્દ્રભાઈ શાહનો પણ ધન્યવાદ કરું છું। કેટલાક દિવસ પહેલા એક મંચ પર મેં કહ્યું હતું કે ભાઈ ગાંધીનગર લોકસભામાં જે થોડી ઘણી સ્કૂલો બચી છે એને તમે પૂરી કરો અને આજે જ આટલું મોટું કામ એક જ ક્લિકથી પૂરું થયું છે। હજારો બાળકોના ભણતરની સુવિધાને મોડર્ન બનાવવાનું કામ થયું છે। સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન દ્વારા ડાયાફ્રામ વોલ, લોઅર અને મિડલ પ્રોમોનાડ, સ્ટેપ્ડ એમ્બેકમેન્ટ, રિટેનિંગ વોલ, માટી પુરાણ અને પબ્લિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર આ કામો પણ આજે પૂરા થશે અને દરેક જગ્યાએ ઘણી જગ્યાએ હેલ્થ ATM અને પ્રાથમિક વિદ્યાલયના કામો પણ થવાના છે। અને એની સાથે સાથે આ કામોના વિશેષ રૂપે અમદાવાદ શહેરના પશ્ચિમ ક્ષેત્રમાં પાંજરાપોળ જંકશન પર ફ્લાયઓવર બ્રિજ બનાવવાનું કામ અને દક્ષિણ ઝોનમાં દાણીલીમડા વોર્ડમાં ચંદોળા તળાવના બ્યુટિફિકેશનનું કામ પણ થશે। મિત્રો, આ બધા કામો કોંગ્રેસના જમાનામાં સેમ ખાતમુહૂર્ત થતા અને પછી લટકતા એવું નથી। મારા છેલ્લા 5 વર્ષના સંસદ સભ્ય તરીકેના અનુભવથી કહું છું, મેં જેના ભૂમિપૂજન કર્યા
એના 91% કામો આજે પૂરા થઈ એનું લોકાર્પણ થઈ ગયું છે અને એ કામો લોકોને મળતા થઈ ગયા. 91% કામો 5 વર્ષની અંદર જેટલા ભૂમિપૂજન કર્યા એના 91% કામો પૂરા થઈ ગયા છે. આ ભારતીય જનતા પાર્ટીના કામના સંસ્કાર છે. નરેન્દ્રભાઈ વડાપ્રધાન બન્યા વખતે ભારતીય જનતા પાર્ટીને પોતાના ચૂંટણી ઢંઢેરામાં અનેક એવા કામો રખ્યા હતા જે લગભગ 50 વર્ષથી 75 વર્ષથી લટકતા હતા. અયોધ્યામાં ભવ્ય રામ મંદિર બનાવવાનો આપણો વાદો વિપક્ષવાળા હંમેશા મજાક ઉડાવતા કે મંદિર ક્યારે બને, અને આજે નરેન્દ્રભાઈએ અયોધ્યામાં ભવ્ય રામ મંદિરનું ખાલી ભૂમિપૂજન ના કર્યું, પ્રભુ શ્રી રામની મૂર્તિનું પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરી લાખો લોકો માટે એ મંદિરને ખુલ્લું મૂકવાનું કામ કર્યું છે. વન રેન્ક વન પેન્શન લાગુ કરવાનું હોય કે જમ્મુ કાશ્મીરમાંથી 370મી કલમ નાબૂદ કરવાની હોય, દરેક અસંભવ દેખાતા કામોને નરેન્દ્રભાઈએ પૂરા કર્યા છે. એની સાથે કરોડો ગરીબોના જીવનમાં 80 કરોડ લોકોને મફત અનાજ આપવાનું, 12 કરોડ ગરીબોના શૌચાલય બનાવવાના, 4 કરોડ લોકોને ઘર આપ્યા, 10 કરોડથી વધારે ગરીબોને ગેસના ઉજ્જવલાના કનેક્શન મળ્યા, 14 કરોડ લોકોને દરેકના ઘરમાં નળથી જળ પહોંચાડવાનું કામ થયું અને 11 કરોડ ખેડૂતોને દર વર્ષે 6,000 રૂપિયા સીધા એમના બેંક એકાઉન્ટમાં ભરવાની શરૂઆત થઈ. નરેન્દ્રભાઈએ સમગ્ર દેશને सुरक्षित કર્યો છે. गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे आप। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से एक्टिव मोड में है और इसी क्रम में गुरुवार को समाजवादी पार्टी से टिकट मिलने के बाद से वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव पहली बार बदायूं पहुंचे। वहीं बदायूं की सीमा में घुसते ही शिवपाल सिंह यादव का जगह जगह जोरदार स्वागत हुआ। सलीम शेरवानी ने उनके बारे में पूछे जाने वाले सवालों पर कहा कि सलीम शेरवानी को उनके घर जाकर मना लेंगे और इसी तरह बाकियों को भी मना लिया जाएगा। सबको पता है ये समाजवादी पार्टी का घर रहा है। यहाँ से नेताजी सांसद हुए, प्रोफेसर रामगोपाल सांसद हुए, धर्मेंद्र हुए, तो जब ये अब हम आ गए, शिवपाल सिंह यादव आ गए यहाँ, तो सलीम शेरवानी हमारा साथ देंगे और जो भी रहे हैं उनको सबको हम ठीक कर लेंगे, मना लेंगे, सब साथ रहेंगे। सलीम शेरवानी हैं, जितने भी नेता हैं सबको मना लेंगे, उनके घर चले जाएंगे और सब ठीक रहेंगे। और अंबेडकर नगर को सीएम योगी ने विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। इस मौके पर सीएम योगी ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। आज यहाँ पर 2122 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात होली के ठीक पहले जनपद वासियों को प्राप्त हो रही है। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, जब अच्छी सरकार आती है तो सुरक्षा भी देती है और समृद्धि भी देती है, लोक कल्याण का कार्य भी करती है और साथ साथ आपके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए आपको गरीब कल्याण योजनाओं के साथ भी जोड़ती है। आपने पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक बदलते हुए भारत को देखा है। पहले हम लोग देश के अंदर पहचान के लिए मोहताज होते थे, दुनिया के अंदर सम्मान नहीं था, देश के अंदर कहीं आतंकवाद था, कहीं नक्सलवाद था, कहीं अव्यवस्था थी, अराजकता थी। लेकिन 10 वर्ष में पूरी दुनिया के अंदर सिरमौर के रूप में उभरा हमारा भारत एक नए भारत के रूप में है। ये नया भारत
देश के 140 करोड़ लोगों का सम्मान भी बढ़ा रहा है, उनकी समृद्धि में भी वृद्धि कर रहा है, सुरक्षा का बेहतर वातावरण भी दे रहा है, नौजवानों की आजीविका की व्यवस्था भी कर रहा है और साथ साथ अयोध्या में रामलला को फिर से विराजमान करके आपकी आस्था को सम्मान भी दे रहा है। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, अभी यहां पे हमने गरीबों को, किसी को मकान दिया, किसी को नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिया, किसी को टैबलेट दिया, किसी को किसी अन्य कार्य के साथ जोड़ करके विकास की योजनाओं का लाभ दिया। आप मुझे बताइए, ये डबल इंजन की सरकार नहीं होती, डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो क्या ये 56 लाख गरीबों को उत्तर प्रदेश के अंदर मकान मिल पाते क्या? और क्या ये सपा और कांग्रेस के लोग दे पाते? अरे वहां तो चाचा और भतीजे में ही जंग लगी हुई है। नियुक्ति आती थी, पूरा परिवार वसूली में मस्त हो जाता था। और भाइयों बहनों, आज हम इसीलिए कहने के लिए आए हैं, हर गरीब को उसकी आवश्यकता के अनुरूप आवास की सुविधा, जमीन का पट्टा, आयुष्मान भारत की योजना का लाभ और अन्न योजना में, गरीब कल्याण अन्न योजना में फ्री में राशन की सुविधा का लाभ ये प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप मुझे बताओ, आयुष्मान भारत का कार्ड कितने लोगों ने बनाया है? आयुष्मान भारत, 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ, देखो ढेर सारे लोग हैं। गरीब कल्याण अन्न योजना में राशन की सुविधा का लाभ फ्री में कितने लोगों को प्राप्त हो रहा है? देखो, क्या ये पहले मिल पाता था? भाइयों बहनों, यही है डबल इंजन की सरकार का लाभ। हम प्रदेश में 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहे हैं। हम लोग फ्री में प्रदेश के अंदर जहां पे मकान, वहीं पे प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में इस योजना का लाभ, वहीं पे उसका मालिकाना अधिकार उस परिवार को उपलब्ध करवाया जा रहा है। भाइयों बहनों, आज सरकार की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के और गांव हर गरीब को दिया जा रहा है। कहीं हाईवे बन रहा है, कहीं ग्रामीण वे बन रहा है, कहीं पे हम लोगों के द्वारा एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण किया जा रहा है, तो कहीं उद्योग निर्माण के लिए क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। अभी जब मैं आया तो अम्बेडकर नगर के भी 2 उद्यमियों को हम लोगों ने यहाँ पे उद्योग लगाने के लिए सर्टिफिकेट जारी किए। यानी 6000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव एक साथ अम्बेडकर नगर जैसे जनपद में लग जाए। ये 6000 करोड़ का मतलब आप जानते हैं, 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नौकरी और रोजगार की गारंटी मिलना। अम्बेडकर नगर के लोग अम्बेडकर नगर में ही नौकरी और रोजगार प्राप्त करेंगे। हर घर नल योजना के माध्यम से, हर घर नल की योजना के माध्यम से आज आपके जीवन में परिवर्तन करने का कार्य हो रहा है। हर घर नल योजना के माध्यम से हर घर तक शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है, जिससे बीमारी से भी बचाव हो सके। और अगर कहीं किन्हीं कारणों से बीमारी हो गई तो 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा आपके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने दे दी है। बहनों और भाइयों, जब एक संवेदनशील सरकार आती है तो बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ इसी प्रकार से आपको उपलब्ध करवाती है, इसी प्रकार से उपलब्ध करवाती है। और इसीलिए आज मुझे अम्बेडकर नगर में आना पड़ा है फिर से आपसे कहने के लिए, ये जितना विकास का कार्य हुआ है ये पहले भी नहीं हुआ था। और पिछले 10 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन का लाभ जिन राज्यों ने लिया उनको लाभ मिला। और 7 वर्ष से जब से प्रदेश में आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई,
जब दोनों सरकारें मिलकर के काम कर रही है तो आज परिणाम आ रहा है। बिना भेदभाव के हर जनपद में विकास भी हो रहा है, निवेश भी आ रहा है, वहां पर रोजगार भी मिल रहा है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है और सरपट विकास की रफ्तार को कई गुना बढ़ाने का काम भी हो रहा है। बहनों और भाइयों, आज जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, क्या ये सपा के लोग करा पाते? क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण सपा के लोग करा पाते? समाजवादी पार्टी के लोग तो आपके जनपद का नाम भी मिटा देना चाहते थे। यानी उन्होंने जितने भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर कन्नौज में मेडिकल कॉलेज का नाम हटा दिया, हमने फिर से जोड़ दिया। हमने कहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान के शिल्पी थे, उनके नाम पर कोई समझौता नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी दलित विरोधी है, उन्होंने भले ही नाम मिटाया होगा, हम फिर से बाबा साहब के नाम पर वहां के मेडिकल कॉलेज का नामकरण करेंगे। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने गेस्ट हाउस का कांड भी करवाया था और दलित महापुरुषों के नाम पर बने हुए स्मारकों को इसने वहां से हटाने के लिए उस समय आह्वान किया था। लेकिन भाइयों बहनों, आज डबल इंजन की सरकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे पंचतीर्थ का निर्माण करती है। आज डबल इंजन की सरकार देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को फ्री में आवास उपलब्ध करवाती है। पहले गरीब का आवास दे दिया, भगवान के भक्त को पहले आवास दे दिया और भगवान का मंदिर का निर्माण तब उसके बाद करवाया गया, जिससे सभी भक्तगण बिना भेदभाव के भगवान का दर्शन करने के लिए आ सके। और आज केवल मकान ही नहीं मिल रहा है, मकान के साथ आयुष्मान भारत का कार्ड भी मिल रहा है, राशन कार्ड भी मिल रहा है, इसके साथ ही उज्ज्वला योजना का कार्ड भी मिल रहा है, बिजली कनेक्शन भी फ्री में उपलब्ध हो रहा है, निजी नलकूप धारकों किसानों को फ्री में बिजली उपलब्ध करवाने का कार्य भी हो रहा है। एक साथ इतने कार्यक्रम एक साथ। और अभी तो ये डबल इंजन की सरकार ने तय किया है, हम हर परिवार को फैमिली आई कार्ड जारी करने जा रहे हैं। फैमिली आई कार्ड का मतलब जिस परिवार को जो सुविधा अब तक प्राप्त नहीं हो पाई और पात्रता की श्रेणी में आता है, जैसे जब एससीसीसी का सर्वे हुआ था 11-12 में, तब न केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, न राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उस समय तमाम भेदभाव हुए थे। उन्हीं भेदभाव को दूर करने के लिए हमने पीएम आवास योजना के साथ साथ सीएम आवास योजना भी चलाई। युवाओं के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए हम लोगों ने उन्हें सक्षम बनाने के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण का कार्यक्रम भी हम लोग कर रहे हैं। या जिन लोगों के पास सेक्स सूची के अनुसार उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, उसके लिए हम एक फैमिली आईडी का आईडी जारी करने जा रहे हैं। हर व्यक्ति के पास वो फैमिली आईडी होगा, वह उसका पहचान भी होगा और पहचान के साथ साथ अगर उस परिवार को राशन कार्ड की आवश्यकता है तो स्वतः उस कार्ड से उसको राशन कार्ड मिल जाएगा। मकान की आवश्यकता है तो मकान उसी से मिल जाएगा। आयुष्मान कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी, उसी कार्ड से सुविधा प्राप्त हो जाएगी। अगर उसके पास कोई रोजगार नहीं, उस परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार की गारंटी सरकार उस परिवार के व्यक्ति को जरूर उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। इस बड़े कार्यक्रम के साथ सरकार आज इसको जोड़ने के लिए आई है। भाइयों बहनों, जब लोक कल्याण सरकार का उद्देश्य होता है तब इस प्रकार के कार्यक्रम हो पाते हैं। जब सरकार में बैठे हुए लोग अपने परिवार के बारे में सोचने लगते हैं, परिवार के दायरे के बाहर उनका चश्मा नहीं देखता है, तब ये गरीब कल्याणकारी योजनाओं में डकैती पड़ती है। तब डकैती पड़ती। 14 से पहले भी देश के अंदर सरकार थी लेकिन गरीबों के बारे में नहीं सोचती थी। 17 के पहले भी प्रदेश में सरकार थी लेकिन गरीबों के बारे में नहीं सोचती थी, अपने बारे में सोचती थी, मैं और मेरा परिवार।
मैं और मेरा परिवार। और मोदी जी ने तो कहा कि 140 करोड़ का भारत ही मेरा परिवार है। एक ही संकल्प है, जनता जनार्दन ही हमारा परिवार है और जनता जनार्दन के लिए सब कुछ करेंगे। हम उसको सुरक्षा भी देंगे और समृद्धि भी देंगे। भाइयों, 2017 के पहले अम्बेडकर नगर में तो मैं बार बार आता था। यहां तो माफिया गरीबों के साथ पर्व और त्योहार नहीं मनाने देते थे, कैसे जमीनों पे कब्जा करते थे। आज कोई माफिया किसी गरीब की जमीन पे कब्जा कर पाएगा क्या? किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ कर पाएगा क्या? मालूम है ना उसको, अगर किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ करेगा तो अगले चौराहे पर यमराज उसका उपचार कर देगा। हो रहा है ना उपचार? अच्छा मुझे बताओ, ये माफियाओं का जो उपचार हो रहा है सही है या गलत है? समर्थन करते हैं ना? तो डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो माफियाओं का ये इलाज नहीं हुआ होता, क्योंकि माफिया तो पिछली सरकारों के द्वारा पाले हुए, उनके द्वारा पोसे गए जीव थे, जो उन नेताओं की आजीविका के माध्यम बनते थे। लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं, इन जीवों को जीने का अधिकार नहीं। अगर एक गरीबों के जीने के अधिकार में हस्तक्षेप करेंगे तो इनके जीने का अधिकार छीन लिया जाएगा, उसको समाप्त कर लिया जाएगा। और बहनों भाइयों, उतनी शक्ति के साथ उन्हें निपटने का काम भी हुआ है। और इसीलिए हम आए आपसे कहने के लिए, ये विकास की योजना का लाभ अनवरत रूप से आप लोगों को प्राप्त हो सके, इसके लिए डबल इंजन की सरकार आवश्यक है। गरीबों को राशन की सुविधा का लाभ मिले, स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिले, हर घर नल योजना का लाभ मिले, हर गांव की कनेक्टिविटी का लाभ मिले, 4 लेन और 6 लेन के एक्सप्रेस वे और हाईवे बने, इसके लिए आवश्यक है। और साथ साथ अभी हमारे सांसद जी कह रहे थे कठेरी बाजार का, मुझे जहां तक जानकारी है कि मैंने उसको स्वीकृत कर दिया है उस रोड को भी, और चिंता मत करिए सब काम होंगे। जितने बचे होंगे तो हमारा पड़ोसी जनपद है, गोरखपुर का और अंबेडकर नगर का बॉर्डर मिलता भी है, तो आपको जो लाभ होना उसका लाभ तो अंबेडकर नगर को होना ही है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे अंबेडकर नगर से हम लोग लेकर भी जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, विकास का लाभ से आज कोई वंचित नहीं कर सकता है। डबल इंजन की सरकार जब तक कार्य करेगी, और देश के अंदर जो भूतपूर्व कार्य हुआ है, इसलिए पूरे देश के अंदर लोगों के मन में एक नया जज्बा जागा है। हर व्यक्ति ये बात सोचता है, आज हर व्यक्ति के मन में एक ही भाव है और उसका एक ही संकल्प है। वह संकल्प है हमारा संकल्प विकसित भारत, हमारा संकल्प विकसित भारत। विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश आवश्यक है, और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित अंबेडकर नगर आवश्यक है। विकसित अंबेडकर नगर के लिए डबल इंजन की सरकार आवश्यक है, और इसीलिए पूरे देश के अंदर जो भी विकसित भारत देखता है, विकसित भारत का मतलब हर गरीब अपनी गरीबी से उभर करके खुशहाली का जीवन जी सके, हर नौजवान के हाथ को काम हो, हर खेत को पानी हो, हर व्यापारी को सुरक्षा हो, हर बेटी को सुरक्षा हो। देश विकास की नित नई बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई दे, उस विकसित भारत की परिकल्पना को साकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। और इसीलिए विकसित भारत के प्रति शुभेच्छा का भाव रखने वाला हर भारतवासी आज एक स्वर से कह रहा है कि 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार। सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।